Once again, welcome back with another video. This is your subject teacher of English, and today we'll go through second chapter from Footprints. This chapter has been taken from Footprints Without Feet. This is supplementary of class 10th. The thief's story. Already I have told you about the summary of this chapter. There is a boy whose name is Hari Singh, plays a major character in this chapter. He was a thief. He kept stealing and cheating people for his own purpose. He made friends, people, especially to cheat them. One day, Hari Singh met a boy whose name is Anil. He was a writer. He earned money writing stories and magazines. Anil was very honest, loyal, and faithful for his duties, and he was inspired with influence of characteristics in human being. He was very genuine guy. He was such a boy who gave others opportunities to rectify and reform their lifestyle. Anil gave a chance to Hari Singh and implied him. Firstly, Hari Singh befriended with Anil, and Anil hired him as an employee at his own house. Anil learned him how to read, how to write, even how to write a complete sentence as well. Although Hari Singh does not deserve that much, but Anil kept giving him some rupees as tip for his efforts. One day, when a magazine of Anil published and it brought him a bundle of notes, currency, money, he handed it to, not handed, but he kept the bundle of notes in the cupboard, or you can say almirah. Hari Singh noticed it. When Anil was sleeping at night, Hari Singh stole the money and ran away from there. He was wandering in the streets because he missed the train from there to Lucknow. He couldn't tackle it. He was wandering here and there in the street. Meanwhile, it began to rain, and he was, wait, it was pouring water. Notes were became, soggy and wrinkled. But while he was wandering here and there, he emerged with a good thought that he should not have cheated Anil. Anil को उसको cheat नहीं करना चाहिए था. And finally, he returned from there and decided to give the money Anil back. When he arrived at home, Anil was still sleeping, and sharply Hari Singh kept the money over there where he took it from. What happens next? Let us go through each line of the story and know the conclusion. The thief's story. A young boy makes friends with Anil. Anil trusts him completely and implies him. Does the boy betray his trust? क्या वो लड़का उसके ट्रस्ट पे खरा उतरता है? ये चीज हम पढ़ेंगे इसमें. Read and find out. Who does I refer to in this story? As I told you, I refers to the boy Hari Singh. What is a fairly successful hand at? What does he get from Anil in return from his work? We'll know everything about all questions and this chapter going through the paragraph. Here we go. I was still thief. I refers to Hari Singh. Hari Singh एक चोर लड़का है. वो बता रहा है, he is narrating the story कि मैं अभी भी एक चोर था when I met Anil, जब मैं अनिल से मिला. And through only 15, though only 15, मैं सिर्फ 15 साल का था.
आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। मैं बहुत ही अनुभवी था और मेरे हाथ बहुत ही साफ थे काम करने में। काम करने का मतलब चोरी करने का जो तरीका था उसका। ही वॉज वेरी प्रोफाउंड एंड स्किल्ड। ओके, मीन्स 15 ही साल की उम्र में उसने इस तरह का एक्सपीरियंस गेन कर लिया था कि वो चीज़ों को आसानी से डील कर सकता था और चुरा सकता था। Anil was watching a wrestling match when I approached him. Okay, Anil. Now, second character is Anil and first character is Hari Singh. Hari Singh is still a thief, एक चोर है, and Anil is a writer. Anil एक writer है, he is honest person, he is genuine guy, he is fulfilled with characteristics of human being. उसके अंदर मानव के जो भी चारित्रिक विशेषताएं होती हैं वो अनिल के अंदर है। बहुत ही अच्छा लड़का है। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। अनिल क्या कर रहा था? एक रेसलिंग मैच देख रहा था। वेन हरी सिंह अप्रोच्ड हिम, ही वॉज अबाउट 25। अनिल की उम्र 25 साल है। अ टॉल लीन फेलो, एक लंबा सा लड़का है। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और वो बहुत ही सिंपल दिखता है। काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पज, वो बहुत ही ईमानदार, साधारण, ठीक है, और सज्जन किस्म का आदमी दिखता था। फॉर माई पर्पज, व्हाट वाज माई पर्पज इज टू मेक फ्रेंड एंड चीट द पीपल। ठीक है, I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. Okay, I was confident for my own experience that I'll make him my friend and I'll win his confidence. मैं पक्का विश्वास उसका जीत ही लूंगा, ऐसा मेरा विश्वास था। You took me a bit of wrestler yourself, I said. मैंने कहा, You look a bit of a wrestler. आप तो एक wrestler दिखाई देते हो. A little flattery helps in making friends. You know, flattery means when we want to make some friends, some people friends. So we have communication with them. Okay, firstly we start कॉन्वर्सेशन विद देम। कुछ तो कहना ही पड़ेगा अगर हमें किसी से फ्रेंडशिप करनी है तो। ऐसा तो है नहीं दैट आई डिजायर टू मेक फ्रेंड्स एंड आई विल नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड, आई एम एन इंट्रोवर्ट, मैं एकदम शांत रहता हूँ तो दूसरा मुझे कोई फ्रेंड बना लेगा, ऐसा तो है नहीं। सो डू यू, ही रिप्लाइड, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. तो अनिल ने क्या कहा? हाँ, yes, so do you, क्या तुम भी हो? Which put me off, that made me silent for some time because I was thin. मैं बहुत ही पतला था उस समय। Now, well, I said modestly, I do wrestle a bit. मैंने कहा हाँ, थोड़ा थोड़ा मैं भी रेसलिंग करता हूँ। What's your name? आपका नाम क्या है? हरी सिंह, I lied. मैंने बोला हरी सिंह मेरा नाम है। I took a new name every month. मैं हमेशा से नाम बदलता रहा। Now, it seems that हरी सिंह is not his original name. उसका जो नॉर्मल नाम है वो हरी सिंह नहीं है। ये बता रहा है कि मैं हमेशा नाम बदलता रहा हूँ, हमेशा एक नया नाम लेता रहा हूँ। तो ये बताता है आई लाइड, मैंने झूठ बोला कि हरी सिंह। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। ठीक है, और ऐसा करने से मुझे पुलिस का सामना करना पड़ता अगर मैं नाम नहीं बदलता तो। एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। नाउ आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट मी वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर grunting, leeching and throwing each other about. Means there were some wrestlers fighting, okay, and they were shining because of oil on their body. wrestlers जो होते हैं वो ऑयल वगैरह का यूज करते हैं, ऐसा इसलिए ताकि उनके शरीर में एक लाइट हो। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? I didn't have much to say. Anil walked away. अनिल वहां से चला गया। I followed casually. मैं उसका पीछा करता रहा। Hello again, he said. उसने कहा hello. I gave him my most appealing smile. मैंने उसको अपनी जो बहुत ही फ्रैंक या कह सकते हैं to make familiar with anybody, I gave a sweet smile. मैंने एक मुस्कुराहट से उसको एक एक्सप्रेशन दिया जो शो करता था कि मैं उसका दोस्त बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सैड। मैंने कहा मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं आपको नहीं चुका सकता। बट आई कांट पे यू, क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं देने के लिए। ठीक है, मैं पैसे तो नहीं दे सकता। आगे देखते हैं सेकेंड पेज पर। यस, आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट। मैंने कुछ समय तक सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। मैंने अपने आदमी को, आई मीन माई मैन मीन्स द पर्सन हुम आई वॉन्ट टू मेक माई फ्रेंड्स, मैंने जिसको अपना दोस्त बनाने का सोचा था, कहीं ना कहीं मैंने उसको मिसजज किया। मीन्स आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, मैं उसको नहीं समझ सका। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, क्या आप मुझे कुछ खाने पीने को दे सकते हो? कैन यू कुक?
क्या तुम खाना बना सकते हो? ये अनिल पूछता है। कैन यू कुक? क्या तुम खाना बना सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। मैंने फिर झूठ बोला और बोला कि हाँ, यस आई कैन कुक, मैं बना सकता हूँ खाना। इफ यू कैन कुक, अगर तुम खाना बना सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तो फिर हो सकता है कि मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप। वो मुझे जुमना स्वीट शॉप पे ले गया, अपने रूम के पास, ठीक है। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और उसने मुझे बोला कि तुम बालकनी में सो सकते हो। बट द मील I cooked that might must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. लेकिन जो मैंने खाना बनाया था, वो खाना इतना टेरिबल था, इट मीन्स इट वाज नॉट टेस्टी, सो दैट अनिल गेव इट टू हिज डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। और उसने पूरा खाना कुत्ते को दे दिया और मुझसे बोला कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। बट आई जस्ट हंट अराउंड, लेकिन मैं अभी भी शिकार की तलाश में था। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। और मैं फिर से मुस्कुराया, ठीक है, और वो भी हंसने से अपने आप को रोक नहीं सका। मीन्स आई वॉज गिविंग अ स्वीट स्माइल टू हिम एंड यू नो चीटिंग, ब्लैकमेलिंग, इमोशनल, सेंटिमेंटल ब्लैकमेलिंग, so that a person could not help him to be angry and get anybody lost. ठीक है, किसी भी आदमी को गुस्से से उसको डांटना, मारना, ये सबके बस की बात नहीं होती है। स्पेशली जो बहुत ही काइंड हार्टेड होंगे, जो बहुत ही जेन्युइन इंसान होंगे, उनको गुस्सा काफी कम आता है, और जब आता है तो बहुत खतरनाक आता है। लेकिन अनिल को ये आदमी सेंटिमेंटली, इमोशनली चीट कर रहा है मुस्कुरा करके, और थोड़ा सा पैनिक एक्सप्रेशन ऑफ द फेस शोइंग टू अनिल बिकॉज ऑफ गेटिंग सिंपैथी, सिंपैथी लेने के लिए। अब आगे क्या होता है? लेट मी इरेज दीज अंडरलाइंस। लेटर ही पैटेड मी, उसने पैटेड, पैटेड का मतलब थपथपाना होता है, ऑन द हेड, सिर पे, एंड सेड नेवर माइंड, इट्स ओके, ही टीच मी टू कुक, वो मुझे सिखाएगा कि खाना कैसे बनाते हैं। ही आल्सो taught me to write, उसने मुझे लिखना सिखाया माय नेम, एंड said he would soon teach me to write whole sentences, और उसने ये भी बताया कि मैं जल्दी ही तुमको पूरा एक वाक्य लिखना सिखा दूंगा, एंड टू ऐड नंबर्स, और नंबर भी जोड़ना सिखा दूंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ही ग्रेटफुल था, उसका आभारी था। आई न्यू दैट once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. और मैं जब लिखना सीख जाऊंगा तो फिर मेरे सफलता का जो मार्ग था, जो जरिया था, वो धीरे धीरे खुलता जाएगा। Because an educated person can achieve so many achievements in his life. Okay. And I didn't know how to read and how to write, but Anil learned me how to read and write. Even he promised me to learn me to write a complete sentence after some time, as well as to add numbers. Now, it was quite pleasant. It was quite pleasant, fantastic for me. It was, a matter to be happy. मैं काफ़ी खुश था इस चीज़ से, working for Anil. I made the tea in the morning and then I would take my time buying the day's supplies. मैं उसके लिए सुबह में चाय बनाता था, और दिन भर में जो भी चीज़ें खरीदनी होती थी, जो सप्लाई करनी होती थी, मैं ये काम किया करता था, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day, और इट ओके। आई वॉज क्वाइट प्लीजेंट, मैं काफ़ी खुश था, और ऐसा करके मैं लगभग एक दिन का ₹1 अर्न करता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी, मैं जानता था, और वो भी ये जानता था कि मैं कुछ पैसे अर्न कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा लगता था कि अनिल जानता है कि मैं कुछ पैसे भी अर्न कर रहा हूँ, दिस वे, इस तरीके से। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, उसने इस चीज़ को माइंड नहीं किया, इग्नोर किया। मीन्स ये मैनेज करता था कहीं ना कहीं इलीगल वे से, ठीक है, सप्लाईज करता था इधर उधर काम करके, और उसी में से जो है कमीशन खोरी करता था, और ₹1 पर डे का कमाता था। लेकिन अनिल इस चीज़ को माइंड नहीं करता था नोइंगली, इस चीज़ को जानते हुए भी अनिल माइंड नहीं करता था। ऐसा कौन सोच रहा है? ये आदमी सोच रहा है। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ठीक है। अनिल कैसे पैसे कमाता था? बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, शुरू करके, ठीक है, चीज़ों को ईमानदारी से, मेहनत से वो पैसे कमाता था। ही वुड बारो मी 1 वीक, उसने मुझे एक हफ्ते के लिए लेंड किया, ठीक है। द नेक्स्ट ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और वो अपने अगले चेक के लिए परेशान रहता था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, लेकिन जैसे ही, जितना जल्दी वो चेक इसके पास आ गया, ये सेलिब्रेट करने लगा और काफ़ी खुश हो गया, ठीक है। इट सीम्स टू रूट,
सॉरी, इट सीम्स ऐसा लगता था, ही रोट फॉर मैगजीन्स, वो मैगजीन्स लिखता था, अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, एंड इट वाज द वे, द मीडियम, सो दैट ही वाज मैनेजिंग हिज लाइवलीहुड। ऐसा करके वो अपनी जीविका को मैनेज करता था। ठीक है, अनिल का काम क्या है? टू राइट मैगजीन्स, एंड इट इज़ अ क्वियर वे टू मेक अ लाइविंग, जीवन यापन करने के लिए ये उसके लिए बहुत ही काफ़ी था और पर्याप्त था। वन इवनिंग, एक शाम की बात है, ही केम होम, वो अपने घर आया विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, उसके पास छोटा सा नोट्स का बंडल था। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, वो बताता है कि मैंने एक बुक पब्लिश करी थी एक पब्लिशर को, उसी के बदले में मुझे ये पैसा मिला है। एट नाइट, रात का समय था। आई शा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैंने उसको देखा कि वो पैसे को कहाँ रख रहा है। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, मैं एक महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम, और इसके अलावा चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और मैं शॉपिंग के समय चीट भी करता था। एंड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, और मैं अपने काम से संबंधित जो मेरा काम था, खाना बनाना, लिखना पढ़ना, इस काम के अलावा ये सारा काम मैं करता था। मीन्स मैं अपना काम नहीं करता था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, क्योंकि मेरे पास हर तरह के अवसर थे ऐसे करने के लिए। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, उसने मुझे एक चाबी दिया। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, मैं कभी भी जा सकता था और आ सकता था जब भी मैं चाहूँ। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, क्योंकि वो मुझ पे बहुत ही विश्वास करता था। आई हैड एवर मेट, मैं ऐसे इंसान से कभी नहीं मिला था। एंड दैट्स वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और यही कारण था कि मैं उसके साथ चोरी नहीं कर सकता था, क्योंकि ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन, वो बहुत ही अच्छा इंसान था, जिसकी वजह से मैं उसको चीट नहीं कर सकता था, मैं उसको लूट नहीं सकता था। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आगे क्या होता है? नाउ, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, ठीक है, बट इट्स डिफ़िकल्ट, क्योंकि ग्रीडी मैन, और ग्रीडी मैन एक लालची आदमी, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, वो लूटा जा सकता था। मीन्स ही वॉज सच अ पर्सन हु कुड बी रॉब्ड ईजली, जिसको आसानी से लूटा जा सकता था। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक केयरलेस आदमी को रॉब करना काफ़ी कठिन होता है। समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड, एंड दैट्स मेक ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, कभी कभी तो उसको पता भी नहीं चलता था कि उसको लूटा जा रहा है या मैं उसको चीट कर रहा हूँ, और ये मेरे काम करने का इट वॉज द थिंग ऑफ ब्यूटी, ये मुझे काफ़ी मज़ा देता था और आनंद मिलता था मुझे। अच्छा, इट्स अ टाइम आई डिड स्टिल आई डिड सम रियल वर्क, मैंने कुछ वास्तव में काम किया था। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से बोला। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस से बाहर था। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैं पैसे नहीं लेता, ही ओनली वेस्ट इट, तो फिर वो उसको वेस्ट कर देता ऑन हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्त पर। आफ्टर ऑल ही डज़ नॉट इवन पे मी, और वो मुझे पैसे भी तो नहीं देता। ठीक है, तो तमाम अलग अलग तरह के ख्याल इसके दिमाग में आ रहे हैं हरी सिंह के। ठीक है, हरी सिंह तो हरी सिंह है नहीं, लेकिन इसने बताया है कि मेरा नाम हरी सिंह है, वास्तव में इसका क्या नाम है ऐसा अभी चैप्टर में नहीं दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। रीड एंड फाइंड आउट हाउ डज अ थिफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट, चोरी के बारे में उसका क्या सोचना होता है कि अनिल क्या रिएक्ट करेगा। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड, वो क्या बताता है अलग अलग तरह के रिएक्शंस जब लोग चीट किए जाते हैं। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बिन रॉब्ड, क्या अनिल को ऐसा रियलाइज़ होता है कि हाँ उसके साथ चीटिंग हो रही है या उसको लूटा जा रहा है, ये सारी चीज़ें। फ़िलहाल के लिए आप इतना तैयार कर लीजिएगा, अगला चैप्टर हम कल समाप्त कर देंगे। ठीक है।